Hello students, let us discuss the steps of mechanism of muscles contraction. So what happen in the relaxed state? In the relaxed state, when the central nervous system that is not sending any signal to the muscles, then there will be the positive charge on the outside of the sarcolemma, and inside the cytoplasm there is the negative charge. So the nerve or that muscles at this state is known as the relaxing state, or we can say the polarized state, or the resting state, when any signal is not transferring to the muscles. Then what happened after this? When the signal is transferred by the central nervous system to the neuron, and from the neuron to the motor unit, and here the chemicals are released, and due to these chemicals there will be the change in the permeability of the sarcolemma, and there will be also the change in the charge on outside the sarcolemma, so that change into negative outside and positive inside. So there will be the change, and due to this now the muscles that is in the, you can say, in the action potential state, or we can say the depolarized state. Now what happen at this stage? In the cytoplasm of the muscle, the endoplasmic reticulum is present, and these endoplasmic reticulum, that is the storehouse of calcium ion. It is the storehouse of calcium ion, and this calcium ion bind with the troponin. Firstly, remind the troponin, where the troponin is present. Suppose that is the diagram of actin protein. So in the actin protein, troponin is present on the actin protein, because actin protein, it is a polymer, and around it one site is present. At that site troponin is present, and this troponin masking the active site of actin, क्योंकि एक्टिन की जो ये साइट है, ये साइट मायोसिन से जुड़ेगी, बट इसको पहले कौन कवर करके रखता है? ट्रोपोनिन। एंड जब ये कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन के साथ जाके जुड़ेगा तो ये इस ट्रोपोनिन को यहाँ से रिमूव कर देगा, और जब ये ट्रोपोनिन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, इसकी जो ये साइट है वो क्या हो जाएगी? ब्लैंक हो जाएगी। अब यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन जो है वो इजीली क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। तो फर्स्टली दैट इज़ द रेस्टिंग स्टेट और द रिलैक्स स्टेट। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो क्या हुआ? इससे जो सिग्नल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन रिलीज़ किए। ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके इसको यहाँ से इन्होंने क्या किया? रिमूव कर दिया, और अब इसकी जो एक्टिव साइट है एक्टिन की वो फ्री हो गई। अब यहाँ पर जो मायोसिन फिलामेंट है वो इसके साथ अटैच कर सकता है। So now the third step. So in the third step, firstly let's revise the structure of myosin protein. So in the myosin protein, the head region have the two site, ATP binding site, and second is the actin binding site. So firstly there will be the hydrolysis of ATP, breakdown of ATP, and when breakdown takes place then ADP, adenosine diphosphate, plus inorganic phosphate
and plus energy. Energy is released, and this energy is used by the myosin filament to bind with the actin filament. Now why myosin filament can bind with the actin filament? Because the active site of the actin where myosin will attach, now it is free. So there will be the binding of the myosin filament with the actin filament, and there is the formation of the cross bridge. So how this cross bridge is formed? This cross bridge is formed with the help of the energy, and that energy is come from by the hydrolysis of ATP. So one diagram here you can understand, like if this is the myosin filament, and in the myosin filament the head part is there, and the head part have the binding site for actin filament, and in the actin filament where the troponin was present, now that is the active site for the binding of the myosin. You can make like this, that is the actin filament, very thin filament it is. So that is myosin, and here that is the active site for the attachment of this myosin head. And what happened here? Here cross bridge is formed. क्या होगा यहाँ पे? क्रॉस ब्रिज बन जाएगा. अब उसके बाद क्या होगा? जो ये मायोसिन का जो हेड रीजन है, ये इनर की साइड विद द यूज़ ऑफ द एनर्जी, ये इनर की साइड ऐसे इस तरह से मूव करेगा. तो हम इस तरह से बना सकते हैं इसको, सपोज विद अदर मार्कर, लाइक ये इनर की साइड मूव करेगा. इसकी जो पोजीशन है वो इस तरह से आ जाएगी. और जब ये इनर की साइड मूव करेगा तो जो ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है ये भी इनर की साइड मूव कर जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा. सपोज द फर्स्ट पोजीशन इज़ दिस, देन द सेकेंड पोजीशन इज़ लाइक दिस. और जब ये इनर की साइड आएगा तो यहाँ पे जो जेड लाइन थी, सपोज जेड लाइन यहाँ पर थी, तो जेड लाइन का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? कम. मीन्स द sarcomere get shorten during this cycle. So that is the mechanism. मीन्स ये इस तरह से यहाँ पर आएगा और ये दोबारा से फिर ये जो क्रॉस ब्रिज है वो जो है वो ब्रेक हो जाएगा. अगेन दिस प्रोसेस गोइंग ऑन. दोबारा फिर एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और फिर एनर्जी इज़ यूज्ड. देन अगेन द क्रॉस ब्रिज इज़ फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज़ गोइंग ऑन. तो इस तरह से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी. लेकिन इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को हम कब रोक पाएंगे? व्हेन द कैल्शियम आयन जो था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था और वो ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया था. तो जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वो बैक वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे. तो फिर दोबारा से जो ट्रोपोनिन है वो फ्री हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम आयन ने उसको रोक रखा था. अगेन ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन troponin is attached, and again there is the masking of actin protein. दोबारा से फिर मास्किंग हो जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी. आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट मास्किंग एंड अनमास्किंग. मास्किंग मीन्स जब जो एक्टिन फिलामेंट पे ट्रोपोनिन जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे मास्किंग. जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे अनमास्किंग.
तो इस थ्योरी को, इस मैकेनिज़्म को आपने समझ लिया। सो दैट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और आगे हम जो आगे पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो वो इसी मैकेनिज़्म को फॉलो करती है वो, कि ये स्लाइड कर रहा है, जो मायोसिन फिलामेंट है एक्टिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है और ये एक प्रोसेस चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वो थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ द मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में आई थिंक यू अंडरस्टूड कि जब रिलैक्स स्टेट में होंगे तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर नेगेटिव, जो ये मसल है वो पोलराइज स्टेट में होगी। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। इसके चेंज से एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा और ये कैल्शियम आयन फिर एक्टिन के जो ट्रोपोनिन जहाँ से जुड़े हुए थे, ट्रोपोनिन को वहाँ से रिमूव कर देगा। और फिर ट्रोपोनिन जब रिमूव हो जाएगा तो एक्टिन जो है वो फ्री हो जाएगा और फिर ये एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ सकता है। मायोसिन की 2 बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो जहाँ से एटीपी जुड़ेगा, एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाएगी और एटीपी से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी मायोसिन यूज़ करेगा इसके साथ जुड़ने में और आगे फिर इसके ऊपर स्लाइड करने में। सो दैट इट इज़ नोन एज द स्लाइडिंग फिलामेंट theory also. So that is the mechanism of muscles contraction. Thank you.